ओके ओके। dfsp और mohs माइक्रोग्राफिक सर्जरी, ये 4 हैं। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन पूछा है, वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, मैं देखता फिर कहीं तो डरमा के टेक्स्ट बुक से मंगाता हूँ मैं। स्किन एडनिक्सल ट्यूमर्स का WHO क्लासिफिकेशन टेबल है, रट्टा मारना है, पर वो मंगाता हूँ तो मैं ग्रुप पे भेजता हूँ। बाकी मिलानोमा पे ही सवाल आया है, पर BCC, SCC, DFSP और MMS पे आया है सवाल, और इनके DD पूछते हैं एग्जाम में भी। वो BCC का सवाल भी ऐसा ही आया कि इसका DD क्या हो सकता है। तो ठीक है, BCC SCC ये मैंने शायद कल शेयर किया था ना डॉक्यूमेंट, वो MD एंडरसन और थोड़ा बहुत डेविटा का मिक्सचर है। मोर देन 95% आर दीज नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर्स। डिफरेंशियल में ये सारे के सारे लीजन्स रखने हैं ध्यान। सिबोरिक केराटोसिस बिनाइन है, ये सिबोरिक केराटोसिस का पिक्चर है। इट्स अ बिनाइन लीजन, एनी पार्ट ऑफ द स्किन एक्सेप्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, ये याद रखियो। Usually after the age of 30 years, not related to sun exposure, और फेस नेक ट्रंक पे रहते हैं, often in large numbers, ठीक है। ये डेवलपमेंट है। So initially there is macules, eventually they become larger with this stuck on plaque appearance. So बहुत characteristic appearance है और benign है, ये याद रखना। Seborrheic keratosis is benign. Actinic keratosis pre-malignant, keratoacanthoma pre-malignant। तो actinic keratosis भी pre-malignant, इसका complete opposite है। ये benign है, ये pre-malignant है। Pre-malignant मतलब it can develop into SCC। ये can occur on any part of skin except the mucous membrane. This can occur anywhere. This is not related to sun exposure. This is related to sun exposure. This is related to sun exposure, and they are patches with adherent scales. Face, scalp, ear and lips. Patches adherent scales. इसका भी ग्रुप कहीं पे पिक्चर तो दिया है हमने। Here, this is actinic keratosis। ठीक है, it's a patch, it's a macule patch, मतलब कोई raised lesion नहीं होता और scales है। Keratoacanthoma पाइलोसेबेशियस ग्लैंड से बनता है, ओरिजिन है। sun damaged skin most commonly found in the neck and face, pilosebaceous gland. Now this is a lesion that takes a long time to develop. So maximum size approximately 2 months में अटेन करता है, और जब मैक्सिमम साइज का होता है तो इट इज अ डोम शेप लीजन विद अ सेंट्रल क्रेटर। फिर वो अपने आप रिग्रेस भी करता है। वो जब रिग्रेस करता है तो टेक्निकली ये जो क्रेटर है वहाँ पे एक स्कार रह जाता है, तो it regresses with a residual scar. So you can technically confuse this with acne also, because pilosebaceous है, बड़ा है, पस्ट्यूल भी बन सकता है, क्रेटर भी बन सकता है, जाता है तो स्कार रह जाता है। तो you can confuse this with acne, but this takes a longer time to develop. बात ये है कि rarely they progress to STD, and that is why excision has been recommended 3 to 5 millimeter margin के साथ, because they have been told this could be a well defined STC also, इसलिए छोटा सा ही margin लेना है, पर margin लेना है exercise करते हुए। And since they are on the face, most surgery can be employed. Above that, they are also radiosensitive in case surgery is not an option. ठीक है, तो seborrheic keratosis completely benign, ऐसा stuck on appearance seborrheic keratosis का रहता है। They are not related to sun exposure. Actinic keratosis pre-malignant lesion है, sun exposure से related है। Most commonly एक macule होता है जिसके अंदर scales होते हैं, and they are pre-malignant. They can convert into SCC, usually on the face, neck, ear and lips. Keratoacanthoma is also a pre-malignant lesion. Rarely it converts into SCC, though it is called a pre-malignant lesion. Dome-shaped lesion with a central crater.
progresses to increase the size over almost 2 months, regresses with a scar. चौथा है क्यूटेनियस हॉर्न. इसका आपने सबने पिक्चर देखा है बेली के अंदर. तो क्यूटेनियस हॉर्न इज बेसिकली डेंस कोन ऑफ एपिथेलियम, मिलीमीटर से लेके सेंटीमीटर तक, उससे ज्यादा भी बन सकता है. इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सी इट्स अ हॉर्न, तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू टेक सम टाइम. तो जनरली सन एक्सपोज स्किन, older individuals, what is important is that they can develop from benign lesions such as seborrheic keratosis. They can develop from pre-malignant lesions such as actinic keratosis and SCC in situ, or they can also develop from malignant lesions like frank SCC. But the important part is almost 15% of them at their base, ये horn का है तो ये at their base 15% of them show some form of invasive SCC at the base. Therefore, excision is always indicated along with the base. Okay. So, sebaceous horns, cutaneous horns, they can develop from benign lesions, they can develop from pre-malignant lesions, they can develop from malignant lesions also. But at their base, they always have, always नहीं, 15% of them have invasive SCC at the base. So excision along with the base is warranted. In case you are not excising, you are taking a biopsy, तो biopsy में भी इसका टुकड़ा नहीं देने का है. यहाँ से एक पंच biopsy है जिसमें base भी आता है और base का depth भी आता है. Nevus sebaceous is a benign. Nevus sebaceous is newborn scalp lesion, gradually becomes more verrucous or warty as the child ages. In adulthood, approximately 10% of these lesions develop into PCC. तो ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसलिए है, ये 2-3 बार पढ़ा तो मेरे को स्ट्राइक हुआ. सीबोरिक केराटोसिस बिनाइन है, एक्टिनिक केराटोसिस प्री-मैलिग्नेंट मतलब एससीसी बनता है. केराटोएंगियोमा रेयरली बनता तो एससीसी है. क्यूटेनियस हॉर्न का भी बेस में क्या रहता है? एससीसी रहता है. पीसीसी के बहुत ही कम, आई थिंक ऐसा मेंशन पहली बार ही मैंने एक चीज पढ़ा है जहाँ पे पीसीसी का भी एक प्री-मैलिग्नेंट लीजन है. But not always, but basically a nevus sebaceous will develop into a PCC. It is pre-malignant for PCC, not SCC. And nevus sebaceous is newborn scalp lesion. 10% of these develop into PCC. Therefore, recommendation है कि ये lesions को excise करो या फिर closely monitor करो. थोड़ा माइक पास में ला ना. माइक है नहीं मेरे पास, ऐसे क्यों बोल रहे? अच्छा, थोड़ा दूर दूर से बात कर रहा है, ऐसे आवाज आ रहा है. अच्छा, नहीं मेरा नाक भी बंद है थोड़ा सा इसीलिए. ठीक, थोड़ा पास से बोलता हूँ. ठीक है. सो नाउ वी कम टू बीसीसी. तो ये जो सारे 5 रीजन्स थे ना, दे आर बेसिकली एक दूसरे का डीडीपी रहता है. सीबेरिक केराटोसिस, एक्टिनिक केराटोसिस, क्यूटेनियस हॉर्न, केराटोएकेंथोमा एंड नेवस सेबेशियस. ठीक है. तो ये 5 लीजन थे बिनाइन जिसका डीडी में नाम आएगा और उसमें से 4 तो प्री मैलिग्नेंट. BCC is the most common type of skin cancer from the hair follicle. Therefore, found almost exclusively on hair-bearing skin. Most are on sun-exposed areas, but they can be found on non-sun-exposed areas also. Slow growing है अपने को पता है. Metastasis का rate बहुत कम है अपने को पता है. Can lead to invasion of local structure अपने को पता है. What is important is histological subtypes हैं BCC के and they are predictive of the behavior. जो लो रिस्क लेस अग्रेसिव है, अग्रेशन इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ लोकल इन्वेजन एंड रिकरेंस. अग्रेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ मेटास्टेसिस. अग्रेशन इज द फॉर्म ऑफ लोकल इन्वेजन एंड रिकरेंस. तो मल्टीपल हिस्टोलॉजिक सबटाइप्स. लेस अग्रेसिव वो ही है, एक है आपका नोड्यूलर और एक है सुपरफिशियल. मोर अग्रेसिव माइक्रो नोड्यूलर, मॉर्फियोफॉर्म, स्क्लेरोजिंग, इन्फिल्ट्रेटिंग. ये नाम ही गंदे गंदे. बस याद रखना कि माइक्रो नोडुलर इज अग्रेसिव, नोड्यूलर इज लेस अग्रेसिव एंड बेसोस्क्वेमस. तो नोड्यूलर एंड सुपरफिशियल आर लेस अग्रेसिव, स्क्लेरोजिंग, इन्फिल्ट्रेटिंग, माइक्रो नोडुलर, मॉर्फियोफॉर्म और डेस्मोप्लास्टिक एंड बेसोस्क्वेमस आर अग्रेसिव. हायर रिस्क have subclinical extension.
exceeding the visible borders of the lesion in treatment mode. ये nodular BCC है. Classic BCC is nodular BCC. Most common BCC is nodular BCC, occurs predominantly on the face, also called described as pearly. ट्रांसलूसेंट है. ये पिक्चर याद रखोगे तो हो जाएगा सारा. पिंकिश है, एजेस देखो, रोल्ड एजेस हैं, फेस पर है, छोटा सा लीजन है और नोड्यूलर लीजन है. तो दिस इज नोड्यूलर बीसीसी. क्लासिक बीसीसी है, लेस अग्रेसिव है, कैन रिजेंबल मेलानोमा इन इंडिविजुअल्स वेयर इट कैन गेट पिगमेंटेड. ओवरलाइन टेलेंजियोप्लासिया एंड अल्सरेशन आर कॉमन. ठीक. सुपरफिशियल बीसीसी का पिक्चर इसमें दिया नहीं है, सिर्फ पैथोलॉजिकल पिक्चर दिया है ये वाला, पर ऐसा पिक्चर नहीं दिया. बट सुपरफिशियल बीसीसी इज मोर कॉमन ऑन द लिम्स एंड ट्रंक. नोडुलर बीसीसी वर्सेस सुपरफिशियल बीसीसी दोनों ही लेस अग्रेसिव है. ये फेस पर है, ये लिम्स और ट्रंक पर है. ये भी स्लो ग्रोइंग है, पिंक कलर का प्लाक है एंड इजीली कंफ्यूज्ड विथ psoriasis, SCC in situ और superficial SCC. बस इतना इम्पोर्टेंट है. हाई रिस्क में आपके पास स्क्लेरोजिंग, मॉर्फियोफॉर्म, इन्फिल्ट्रेटिव, माइक्रोनोडुलर. These are rare. They are poorly defined plaques which can be mistaken for a scar. इसका भी शायद फोटो था नहीं, ये नहीं है. नहीं, ये सुपरफिशियल टाइप ऑफ बीसीसी है. ये मुझे लगा कि उसका है. सौम्या म्यूट प्लीज. तो जो स्क्लेरोफॉर्म है, one of the rarest forms of BCC but aggressive, frequently found to be larger histopathologically than is clinically evident. वो हर aggressive BCC के लिए common है because they have more subclinical extensions. And basosquamous के ऊपर दो ही लाइन लिखनी है. Basosquamous is a result of collision between the adjacent BCC and SCC. Aggressive है, वो अपने को देख लिया था पहले. Potential to metastasize भी है. Basosquamous में metastasis का potential है. बाकी हर एक का aggression जो है वो local aggression है. पर basosquamous का metastasis का aggression है. क्यों? Because there is a squamous component and the metastatic risk is determined by the degree of the squamous component. As far as SCC is concerned, they arise from keratinocytes of the epidermis. BCC का origin क्या था? Hair follicle. मेलानोमा का ओरिजिनल क्या था? बेसल सेल का मेलानोसाइट. बीसीसी का हेयर फॉलिकल एंड स्क्वैमस सेल का केराटिनोसाइट्स ऑफ द एपिडर्मिस. क्रोनिक सन एक्सपोजर से होता है. दिस कुड बी बिकॉज ऑफ आउटडोर वर्क और दिस कुड बी बिकॉज ऑफ इंडोर टैनिंग. दोनों ही एप्लीकेबल हैं. क्यूटेनियस एससीसी इज इंडोर टैनिंग हो गया. क्रोनिक सन एक्सपोजर मतलब सन डैमेज स्किन. There is SCC in situ which is called Bowen's disease. It is a well demarcated ulcerating tumor in a pre-existing scaly or erythematous plaque. SCC, ये SCC in situ है. SCC can arise from pre-malignant lesions. ओपन ने देखा actinic keratosis or at the base of cutaneous horn. De novo SCC as a single lesion on otherwise normal appearing skin is very uncommon. तो SCC या तो प्री मैलिग्नेंट लीजन से बनेगा विच इज एक्टिनिक केराटोसिस या क्यूटेनियस हॉर्न का बेस, या तो SCC इन सीटू रहेगा जो एक आपके पास एक स्केली प्लैक रीजन होगा जिसके ऊपर एक अच्छा खासा अल्सर बन रहा होगा, वेल डिफाइंड इरेगुलर बॉर्डर, रैपिडली ग्रोइंग. या तो फ्रैंक SCC बनेगा जो ये रहेगा सिंगल लीजन बट अनकॉमन ऑन अ नॉर्मल अपीयरिंग स्किन. मतलब स्किन पे स्केल्स तो होंगे ही यूजुअली. जैसे अपना ये पीनाइल कैंसर भी होता है ना, ग्लैंड्स वाला, उसका भी ऐसा रहता है ना कि स्केल्स तो होते हैं. दे आर नॉन हीलिंग, दे आर स्केलिंग एंड देन दे अल्सरेट. तो दैट इज व्हेन यू गो एंड हैव अ बायोप्सी, इट कम्स आउट टू बी SCC. तो यूजुअली स्केल्स डैमेज्ड स्किन होता है बेसिकली. क्रोनिक सन एक्सपोजर कॉजिंग डैमेज और इन्फ्लेमेशन कॉजिंग डैमेज. दैट डैमेज स्किन इज बेसिकली स्कार्ड एंड स्केली स्किन एंड उसके ऊपर आपका कोई अल्सरेशन रैपिडली ग्रो हो रहा है या अच्छा खासा बॉर्डर दिख रहा है आपको अभी. तो इट इज मतलब इट इज नॉट इल डिफाइंड स्केल, इट इज अ प्रॉपर बॉर्डर दिख रहा है आपको. तो इट इज टेक्निकली गोइंग टू बी एन SCC इन सीटू. बायोप्सी लेना चाहिए.
frankly normal skin पे अचानक से एक lesion grow हो रहा है, usually not an SCC. It could be a BCC which is also slow growing. It could be something else, but it is usually not an SCC. Uncommon. Metastatic potential SCC का ज़्यादा है, ये अपने को पता है. So the risk factors for non-melanoma skin cancers are grouped together only. As far as UV light is concerned, that is the most important risk factor. इसमें एक चीज याद रखना, BCC जो है, B stands for bolus. तो BCC में हमेशा intense intermittent sun exposure रहता है, leading to skin burns. That is a risk factor for BCC. SCC में chronic रहता है, तो cumulative dose over some time. इवन फॉर ये सोरियासिस का ट्रीटमेंट में हम ये पूवा थेरेपी करते हैं ना, उसमें भी यू आर बेसिकली गिविंग UVA in combination with light treatment resulted in increased adjusted risk of 8.6 for SCC. So even that sort of light treatment, basically any UV radiation is going to be a risk factor for SCC and BCC both. SCC क्योंकि chronic exposure, BCC for intense intermittent bolus of exposure. दूसरा कॉज है इम्यूनोसप्रेशन HIV में मान लो, इम्यूनोसप्रेशन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट में मान लो, इम्यूनोसप्रेशन ड्यू टू एनी अदर कॉज मान लो. सो इम्यूनोसप्रेशन का भी ऐसा है कि BCC का रिस्क बढ़ जाता है 5 to 10 फोल्ड, SCC का ज्यादा बढ़ता है 100 फोल्ड. से 1. नंबर 2, BCC in normal individual and BCC in immunosuppressed individual tends to behave in a similar manner. कोई less aggressive का more aggressive नहीं होता. But SCC का aggressiveness increases in immunosuppressed individuals. AIDS, also immunosuppression, higher risk. Infection of or reactivation of dormant HPV is also in an immunosuppressed state, is also believed to be a contributing factor, leading to SCC in mucosal and anogenital regions. So पहला था UV, उसमें भी bolus exposure and chronic exposure. दूसरा था इम्यूनोसप्रेशन, उसमें भी आपके पास HIV मान लो, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स मान लो, एड्स के पेशेंट मान लो, या और कोई रीजन से इम्यूनोसप्रेस्ड है, कीमोथेरेपी का पेशेंट मान लो, एनीथिंग, उसमें भी समझो HPV अगर रिएक्टिवेट हो गया तो म्यूकोजल एंड एनोजेनिटल रीजन्स का SCC डेवलप हो सकता है ज़्यादा जल्दी. Prior receipt of ionizing radiation is also associated with a threefold increased risk of non-melanoma skin cancer, often presenting decades after initial exposure. ये बहुत important point है. उसके अलावा chemical exposure के साथ SCC का relation है, basically because it causes irritation. और उसी के एक subset है marginal ulcer, जहाँ पे SCC arises from areas of chronic inflammation and healing such as from scars, burn sites or ulcers. This type of SCC is known as marginal ulcer. ठीक है, तो रिस्क फैक्टर के अंदर UV रेडिएशन, इम्यूनोसप्रेशन के अंदर आप एड्स डाल दो, ट्रांसप्लांट डाल दो, मैलिग्नेंसी के कीमोथेरेपी पेशेंट्स डाल दो, पैलिएटिव केयर के पेशेंट्स डाल दो, HPV वाले पेशेंट्स डाल दो. तीसरा है आयनाइजिंग रेडिएशन which can lead to SCC even decades after initial exposure. चौथा है केमिकल एक्सपोजर. पांचवा है मार्जिनल अल्सर. छठा है जेनेटिक सिंड्रोम्स. जेनेटिक सिंड्रोम में ये 3-4 याद रखना. जीरोडर्मा पिगमेंटोसम में निवॉइड बेजल सेल तो इन्होंने दिया है, उसके अलावा फ्रैंकनी, लीफ्रोमैनी, बिजस P53 म्यूटेशंस एंड म्यूइटोर सिंड्रोम. जीरोडर्मा एंड नेवॉइड का यहाँ पे एक्सपेंशन दे रखा है. जीरोडर्मा इज अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, डिफेक्टिव DNA एक्सचेंज रिपेयर, फोटोफोबिया, sun sensitivity, sun damage. 1000 times of the general population का risk है to develop malignancies. Ideally these patients should go out at night only. दूसरा है नेवॉइड बेजल सेल सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये BCC का है. Multiple BCCs, often quite small in number individually, can number in the hundreds. Sonic hedgehog pathway का म्यूटेशन रहता है as having a significant etiological role in nevoid BCC syndrome.
ऑल्सो प्रेजेंट इन 90, यही पाथवे का डिफेक्ट 90% ऑफ स्पोरेडिक बीसीसी के अंदर भी मिलता है. अगेन दीज पेशेंट्स आर ऑल्सो एक्सक्विजिटिवली सेंसिटिव टू रेडिएशन एंड शुड अवॉइड एक्सपोजर टू सन एंड रेडिएशन थेरेपी एट ऑल पॉसिबल कॉस्ट्स. जीरोडर्मा एंड नेवॉइड. न्यूइटॉइड सिंड्रोम मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये शायद कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर पड़ा था ना शायद. कहाँ पड़ा था? HNPCC का वेरिएंट है. HNPCC, हाँ राइट. और लीप रोमानीज P53 ना. ठीक है, ठीक. तो वर्कअप एंड बायोप्सी, पंच बायोप्सी या फिर वाइड लोकल एक्सिजन ऑब्लिक एक्सिजन बायोप्सी. ठीक है, पंच बायोप्सी डर्मा वाले करते हैं. ऐसा एक लॉन्ग सिलेंडर होता है, 2 to 8 मिलीमीटर के अलग अलग साइजेस में आता है. मतलब दे आर ऑल ऐसे अलग अलग साइज में आता है. डायलेटर होते हैं ना, ऐसे रहते हैं. यहाँ पे लीजन है तो उसको एक ऐसा लोकल एनेस्थीसिया देंगे और उसको बाद में यहाँ पे वो पंच को, ये स्किन है तो ये पंच है तो उसको पंच को वो लोग यहाँ पे बिठा के स्क्रूइंग मोशन से पंच को अंदर डालेंगे और सबक्यू फैट तक जाके निकाल देंगे. सो बेसिकली दे क्रिएट अ होल देयर. तो दैट इज अ पंच बायोप्सी. फ्रॉम 2 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर पंचेस साइज लिखा हुआ रहता है, उस पर अवेलेबल रहते हैं. आइडियली दे रिमूव इट टू द लेवल ऑफ सबक्यू फैट. एंड अगर बड़ा लीजन है तो द मोस्ट सस्पिशियस एस्पेक्ट ऑफ द ट्यूमर हैज टू बी सैंपल्ड. एक्सिजन बायोप्सी में आप बेसिकली एक तरीके का वाइड लोकल एक्सिजन करते हो जिसमें आप 2 से 3 मिलीमीटर का कम से कम एक मार्जिन रखते हो एंड वो मार्जिन को भी इवेलुएट करना पड़ता है. फर्दर ट्रीटमेंट इज ऑफन अननेसेसरी. लास्ट है शेप बायोप्सी विच इज यूजुअली नॉट डन बिकॉज शेप बायोप्सी में आपको मतलब यू आर डूइंग इट ओनली फॉर वेरी सुपरफिशियल लीजन जहाँ पे आपको डेप्थ का इतना चिंता नहीं है. It is also a good biopsy technique for cutaneous horns or keratoacanthomas provided the base of the tumor is included in the specimen. तो ये तीन ही है बायोप्सी के लिए. As far as workup is concerned, वर्कअप में कुछ खास है नहीं. आप डेप्थ का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप MRI ऑब्लिक CT कर सकते हैं, but that is usually not required. What is more important is to examine nodal status. So if there is concern for bone involvement, CT with contrast is preferred. अगर नोड्स हैं, आपको हाथ को लग रही है नोड्स, या सोनोग्राफी कराया उसमें नोड्स आ रही हैं और रीजनल लिम्फ नोड्स लग रहे हैं वो, तो FNAC करो नोड का. अगर वो पॉजिटिव आता है या रिगार्डलेस अगर सस्पिशन है पर FNAC नेगेटिव आ रहा है तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए आप पेट CT करो. ठीक है. सो अगर डीप सॉफ्ट टिश्यू का प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्वेश्चन है सॉफ्ट टिश्यू या पेरिन्यूरल इन्वेजन, तो MRI करो. फ्रैंकली कहीं पे ऐसा सॉफ्ट टिश्यू नहीं बट स्ट्रेट बोन लग रहा है तो CT करो, और नहीं तो फिर एट द मोस्ट अगर नोड लग रहा है तो पेट CT करो. कोई स्टेजिंग नहीं है सिवाय हेड एंड नेक के SCC के, ऐसा ये बोल रहे हैं. तो ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफन इट इज सर्जिकल. इफ सर्जिकल इज नॉट डन देन इट इज नॉन सर्जिकल और टॉपिकल ट्रीटमेंट. सर्जिकल के अंदर क्या है, द मोस्ट प्रेफर्ड ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट इज वाइड लोकल एक्सिजन. तो वाइड लोकल एक्सिजन में वाइड क्या है, वाइड इज द मार्जिन. मार्जिन कितना लेना है, मार्जिन कितना लेना है डिपेंड्स ऑन हाई रिस्क वर्सेस लो रिस्क लीजन. तो ये दोनों के लिए BCC SCC दोनों के लिए. तो BCC और SCC दोनों में बहुत सारी कॉमन फैक्टर्स हैं जिसमें ये साइज पे डिपेंड करते हैं, इसमें ये लो और हाई रिस्क बनाते हैं. BCC में कम है तो पहले वो साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर लो रिस्क, ट्रंक एक्सट्रीमिटी पर है लो रिस्क, वेल डिफाइंड बॉर्डर है लो रिस्क, प्राइमरी लीजन है रिकरेंट नहीं है लो रिस्क, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है हाई रिस्क, द लीजन इज एट अ साइट ऑफ प्रायर रेडिएशन थेरेपी हाई रिस्क, द लीजन पेरिनल इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट हाई रिस्क. सब टाइप सुपरफिशियल एंड नोडुलर अपन ने देखा था लो रिस्क है, बाकी सारे के सारे हाई रिस्क है. सिमिलरली SCC के अंदर भी ऐसा है, पर SCC के अंदर उन्होंने 3 चीजें लिखी है, लो रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क. ये सब ऑलमोस्ट सेम ही है. लोकेशन एंड साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर विल बी लो रिस्क, 2 to 4 विल बी हाई रिस्क, वेरी हाई इज 4 than 4 सेंटीमीटर. लोकेशन ट्रंक एक्सट्रीमिटी का लो रिस्क है, बाकी फेस और मास्क एरिया और एनोजेनिटल रीजन जहाँ पे ये HPV भी हो सकता है, प्रीटिबियल, फीट, हैंड्स, नेक, ये सारे के सारे सन एक्सपोज है. You imagine a person going on the beach wearing just shorts. So basically head, neck, hands, feet, pretibial, anogenital, okay, that picture does not settle, but ठीक है. So high risk.
Borders again well defined. Primary lesion है, low risk. Prior radiation therapy के वहाँ पे lesion हुआ है, high risk. Immunosuppressed patient है, high risk. Rapidly growing tumor है, high risk. Differentiation, well differentiation, low risk. Poor differentiation is very high risk. Histologic features SCC में याद रखना. Acantholytic, adenosquamous, metaplastic. कुछ भी प्रेजेंट है तो हाई रिस्क. डेस्मोप्लास्टिक है तो वेरी हाई रिस्क. डेप्थ में एक ही कट ऑफ है 6 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर. बाकी ये दोनों ऑब्वियसली यस रहेगा तो हाई रिस्क रहेगा. तो ये बेसिकली इतना, ये इसमें इतना डिफरेंस इतना करने की जरूरत नहीं है, बट ये एग्जाम में लिखने को ये टेबल तो याद रह ही जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेम है. लोकेशन सेम है, बीसीसी एससीसी का साइज सेम है, प्राइमरी बीसीसी है कि रिकरेंट बीसीसी है, बॉर्डर्स अच्छे हैं कि नहीं, पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड है या नहीं, रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है कि नहीं. हिस्टोलॉजी में एससीसी के अंदर हिस्टोलॉजी आता है, बीसीसी के अंदर सब टाइप आता है, और पेरिन्यूलर एंड लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन डाल देने का साथ में. तो ऐसे 6-7 पॉइंट तो लिख सकते हैं. सो बेसिकली लो रिस्क लीजन अगर होता है तो 4 मिलीमीटर का मार्जिन चलता है. हाई रिस्क होता है तो 6 मिलीमीटर का मार्जिन चाहिए. यूरोपियन गाइडलाइन से 10 मिलीमीटर. अगर रिकरेंट लीजन है, अगेन इट्स अ हाई रिस्क लीजन, रिकरेंट लीजन का एक्सcision कर रहे हो तो 10 मिलीमीटर मार्जिन चाहिए. एंड इनकम्प्लीट एक्सcision हुआ है तो री एक्सcision चाहिए. ठीक है, 4 ही चीजें हैं. लो रिस्क 4 मिलीमीटर, हाई रिस्क एटलीस्ट 6 मिलीमीटर, रिकरेंट लीजन 10 मिलीमीटर, इनकम्प्लीटली एक्साइज्ड, री एक्सcision इफ पॉसिबल. एंड कितना भी एक्ससाइजन कर लो, अगर उसको टिश्यू फ्लैप के साथ बंद करना है तो ट्राई एंड डू अ टेम्पररी क्लोजर, वेट फॉर margin status, especially in a high risk lesion, and only then do a definite closure, be it a flap or a tissue rearrangement. But definite closure अगर करना है, high risk lesion है, तो it is better to wait for final histopath report, even if it takes 2 to 3 days. ये मैं अलग से पढ़ा था, मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी. हाँ, सो फॉर नोड्स, अगर ऑब्वियस नोड्स हैं, जैसे अपन ने वर्कअप में देखा, ऑब्वियस नोड्स हैं, पेट सीटी कर रहे हो, नोड्स दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली द ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी नोडल डिसेक्शन फॉलोड बाय रेडिएशन थेरेपी मोस्ट लाइकली. अगर ऑब्वियस नोड्स नहीं है तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बट इट इज नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि द आइडिया ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी इज कि वो वहाँ पे नोड पॉजिटिव होने के पहले ही आप उसको पकड़ लो. तो इसका बेसिकली तुम्हारे पास हाई रिस्क एससीसी के अंदर ही इसका चांस है, लो रिस्क के अंदर इतना कुछ है नहीं. उसमें भी दे हैव फाउंड दैट among patients with tumors of less than 2 cm which falls in low risk, and 2 to 3 and 3 cm the incidence of positive lymph nodes was 0%, 15%, 30%. But still additional studies will be needed before definitive guidelines can be established with respect to sentinel lymph node biopsy in an N0 patient. If it's an N plus, go for lymph node dissection adjuvant RD. तो ये था आपका वाइड लोकल एक्सcision. दूसरा है क्यूरेटाजिल इलेक्ट्रो डिसेक्शन. इमेजिन यू हैव अ पेशेंट जिसके थंब के पल्प पे एक लीजन है which turns out to be SCC बायोप्सी. तो वहाँ पे आप पल्प पे आप क्या ही रिकंस्ट्रक्शन कर दोगे, तो वहाँ पे मतलब दिस इज ओनली एग्जांपल आई एम गिविंग. तो उसमें आप क्या कर सकते हो, क्यूरेटिंग एन इलेक्ट्रो डिसेक्शन. बेसिकली क्या करते हैं, दिस इज द थंब, ऐसा लीजन है तो आप क्यूरेट से एक यहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया का रिंग ब्लॉक देके आप इतना लीजन निकाल दोगे, एंड बाद में क्यूरेट से कॉटरी से बेस को कॉटराइज कर दोगे. द थिंग कैन बी रिपीटेड अप टू 3 times in a session. The base is denatured by electrodissection and deep tumor is debulked under local anesthesia. Healing can be done by secondary intention. If the subcu fat is reached during this technique, it is necessary to convert this into a proper surgical excision. But this technique will not allow you for a margin assessment, because basically तुम सिर्फ ट्यूमर को debulk करके उसका बेस जला रहे हो. You're doing nothing else. So should be reserved for small lesions which are low risk, superficial, primary BCCs in non-hair bearing areas. So like I told you, ideal example is किसी के thumb पे एक छोटा सा lesion है which looks like a BCC or SCC.
Non-surgical therapy is radiation. Patients often unable or unwilling to undergo surgical treatment of primary lesion. You can offer them radiotherapy, but RT can itself lead to non-melanoma skin cancers. ये अपन ने देखा. UV radiation था, दूसरा था immunosuppression और third risk factor था radiation, ionizing radiation. So it should be cautiously used in young patients, contraindicated in nevoid BCC. So non-surgical surgical therapy is there. Non-surgical therapy mainly RT अपने ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो what remains is topical. टॉपिकल में दो ही चीज याद रखनी है, इतना ही खाली याद रखना. 5FU है एंटी मेटाबोलाइट क्रीम एंड इमिक्विमोड है विच इज immune response modifier enhancing the cell mediated immune response via the induction of pro-inflammatory cytokines. इनका यूज कहाँ पर है? सुपरफिशियल BCC एंड SCC in situ. नोड्यूलर BCC के अंदर इसका यूज नहीं है एंड प्री मैलिग्नेंट लीजन के अंदर यूज कर सकते हो. तो एक केस तो एक्टिनिक केराटोसिस, SCC इन सीटू एंड सुपरफिशियल BCC, ये तीन में आप इन दोनों को यूज कर सकते हो. इन जनरल the treatment regimes vary because they have to be applied for weeks. If you want to go through, but मैंने याद नहीं रखा है because it's getting impossible. जैसे इसके अंदर है 4 हफ्ते लगाना है, इसके अंदर है 4 से 6 हफ्ते लगाना है, यहीं पे फिर इमिक्विनोड का 16 हफ्ते हो जाता है और 12 हफ्ते हो जाता है, तो gets difficult क्योंकि after a certain point we have lots of things to remember. So basically you are using it for 5FU क्या है, एंटी मेटाबोलाइट है, इमिक्विनोड क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर है. यूज क्या है? एक एक्टिनिक केराटोसिस, सुपरफिशियल BCC, SCC in situ, not appropriate for nodular BCC, not recommended for frank SCC because of high recurrence rates. The treatment regime for AKs, for the treatment regime for both 5FU and imiquinod are different for in these indications, but more importantly, imiquinod is often well tolerated, causes minimal or no scarring, and is particularly useful for multiple lesions concentrated in one area because it is well tolerated and causes minimal or no scarring. तो ये एक important point याद रखना. The other less used therapies, photodynamic therapies के ऊपर एक सवाल है, but मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, फिलहाल स्किन के ऊपर ही मिला है. तो photodynamic therapy is also a non-invasive method. What they do is photosensitizer, most commonly aminolevulinic acid, is applied to the skin, and then it is activated with a light source. The tumor cells retain the photosensitizer for longer periods than normal cells, resulting in preferential killing. The cure rates for actinic keratosis, which is a pre-malignant lesion, as high as 90%, but recurrence rates are high. Superficial nodular BCC के recurrence rate approximately 20% तक है. Side effects: burning or stinging pain during the treatment and post-treatment period में swelling, erythema, inflammation हो सकता है, but overall the cosmetic results are superior in comparison to surgery or cryotherapy. PDT को आप सिस्टमिकली भी दे सकते हैं, डर्मा वाले देते हैं, पूरे ही बॉडी पे ये लगा दो, उसके बाद पूरी ही बॉडी के जहाँ पे लगा है वहाँ पे लाइट सोर्स से इसको एक्टिवेट कर दो when you are dealing with multiple lesions or nevoid BCC syndrome. So this is about photodynamic therapy. बैरेट्स में भी रहता है, बैरेट्स में भी रहता है, यस. हाँ. और लास्ट है कीमो प्रिवेंशन. उसका रोल ज़्यादा नहीं है. Low dose oral retinoids, which you also give for acne, or low dose oral retinoids and nicotinamide have shown some promise in the prevention of SCC for patients at high risk, such as transplant recipients or those with xeroderma pigmentosa, psoriasis treatment with UV exposure. तो इन सबको आप कीमो प्रिवेंशन पे ये डोज पे रख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट कीमोथेरेपी का ज़्यादा रोल नहीं है. BCC के अंदर hedgehog pathway था, उसके inhibitors हैं vismodegib and sonidegib. They have been used for BCC treatment and prophylaxis in patients with nevoid BCC syndrome, but ज़्यादा कुछ रोल अभी तक है. ठीक है. सो ट्रीटमेंट में बेसिकली सर्जरी में आएगा वाइड लोकल एक्सिजन एंड मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी, और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रो डिसेक्शन, क्यूरेटाजिन इलेक्ट्रो डिसेक्शन. नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर एक रेडिएशन आएगा विच इज नॉट गिवन वेरी ये इजीली.
और उसके अलावा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट सुपरफिशियल थेरेपी, जिसके अंदर आपके पास 5FU है, इमिक्विनॉड है। दोनों का मैकेनिज्म अलग है थोड़ा सा, पर दोनों का ड्यूरेशन थोड़ा सा अलग है। बाकी यूज कहाँ पे करते हैं, नॉट सुपरफिशियल ये BCC एक्टिनिक केराटोसिस एंड SCC इन situ, यहीं पे यूज करते हैं। Imiquinod is better tolerated, less scarring, and therefore can be applied to a larger area. The third non-surgical therapy in topical therapy is PDT, which can be given, which is fairly simple concept. And उसके अलावा क्रायोथेरेपी है, बट क्रायोथेरेपी इतना यूज करते नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि बायोप्सी के लिए कुछ टेक्निकली मिलता नहीं है। एंड कीमो प्रिवेंशन विथ ओरल रेटिनॉइड्स prophylactically, for example patients on PUVA therapy, patients with xeroderma pigmentosum, patients with transplant recipients. Chemotherapy no big role, but can be tried as hedgehog pathway inhibitors have been approved, vismodegib and prosonidegib, most likely prophylactic role only for BCC treatment and prophylaxis in patients in nevoid BCC syndrome. ठीक है, मोज माइक्रोस्कोप माइक्रो, ये ना, ये आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस मिस्टेक, बट मैंने अभी पढ़ते वक्त रियलाइज किया कि आई ऑलवेज रेड दिस एज मोज माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। दिस इज माइक्रोग्राफिक सर्जरी। आई डोंट नो, मैंने ये हमेशा माइक्रोस्कोपिक पढ़ा था, तो इट इज मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी। फ्रेडरिक मोज ने बनाया था, renowned for its effectiveness in completely removing cancerous tissue and preserving a much healthy skin as possible. Particularly advantageous for skin cancers with two reasons: indistinct clinical borders जिन कैंसर का है, for example high risk BCC है जहाँ पे subdermal extension ज़्यादा है, or those in critical areas such as the face or the scalp or the eyebrows, eyelids, where tissue preservation is crucial for cosmetic and functional reasons. वहाँ पे Mohs micrographic surgery is good. ये क्वेश्चन अगर आया तो आई थिंक 3 या 5 मार्क में आएगा, इसमें 1-2 पेज लिख देंगे तो काफी हो जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन। उसके अलावा नेक्स्ट है डेवलप्ड बाय डॉक्टर मो। Originally this was called chemosurgery because they used to use a chemical fixative called zinc chloride to the in situ tumor. तो वो क्या करते थे, ट्यूमर यहाँ पर है, उसके ऊपर जिंक क्लोराइड लगाया, तो वो बेसिकली जैसे अपन फॉर्मेलिन में फिक्स करते हैं, ऐसे वो ट्यूमर वहाँ पे फिक्स हो जाता था। एंड देन द ट्यूमर वाज एक्साइज्ड एंड माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन्ड फॉर एवरीथिंग, मार्जिन्स एंड ऑल। दिस वाज रिपीटेड अंटिल द ट्यूमर वाज कंप्लीटली रिमूव्ड। तो इसमें एज वी कैन सी, जितना मतलब यू हैव टू बेसिकली एक्साइज द होल ट्यूमर। अभी वो चीज को मॉडिफाई कर दिया। नाउ व्हाट दे डू इज, ये लीजन है तो उसको पहले आप डीबल्क कर दोगे। मतलब अगर ये लीजन है, इतना लीजन है, इतना आपको मार्जिन रखना है, तो पहले आप लीजन को पूरा का पूरा डीबल्क कर दोगे, और उसके बाद जो मार्जिन आपको लेना है वो मार्जिन को आप एक्साइज करोगे 3 डायमेंशनल। मतलब अगर आप क्रॉस सेक्शन में देख रहे हो तो इतना ट्यूमर था, तो आपने उसको डीबल्क कर दिया और बाद में मार्जिन को ऐसे एक्साइज किया। ठीक है, तो यू एक्साइज दिस सॉर्ट ऑफ अ कॉन्केव शेप्ड लीजन, बट बिफोर एक्सिजन यू मार्क द clock positions, basically 12 o'clock, 3 o'clock, जैसे आपको मार्क करना है, whatever makes it easy for you to convey to the pathologist and the pathologist to you। तो आपने एक ऐसा बेसिकली कोन सिलिंड्रिकल टिश्यू एक्साइज किया 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। बाद में उसको आपने मार्क करके ऐसे पूरा फ्लैट रख के 4 पीस में कर दिया। 4 पीस ऐसे बनाने, मतलब उन्होंने ये एक्सप्लेन किया उन्होंने कि अपन हमेशा जब मार्जिन असेसमेंट करते हैं फ्रोजन सेक्शन में, तो इट इज ऑलवेज कट लाइक दिस। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल कट करना है, जैसे टेक्निकली आप पूरे टिश्यू को एक्साइज ये एग्जामिन कर सके। तो फॉर इंस्टेंस दिस इज द ट्यूमर, 3 डायमेंशनली दिस इज द ट्यूमर। तो आपने उसको डीबल्क कर ये निकाल दिया पूरा। उसके बाद आपको सिर्फ इतना सा टिश्यू का रिम निकालना है, which is going to look somewhat like this. When you flatten it on the table, it will look somewhat like this. ऊपर से देखोगे तो it will look somewhat like this। और बाद में उसको अपने क्लॉक पोजीशंस देके पैथोलॉजी को भेज दिया, वो लोग फ्रोजन करेंगे, वो बताएंगे आपको कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्यूमर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो बेसिकली आपने जो स्किन के अंदर इतना बड़ा क्रेटर क्रिएट किया है,
वो क्रेटर पर आप उसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके और थोड़ा मार्जिन लेंगे। वो जैसे जैसे आप मार्जिन लेंगे वैसे वैसे टिश्यू आप निकालते जाएंगे, बट यू आर ट्राइंग टू प्रिजर्व एज मच स्किन एज पॉसिबल एंड यू आर रिमूविंग ओनली द टिश्यू। तो पूरे ये पहले के सर्जरी के तरीके में और अभी के सर्जरी के तरीके में फर्क इतना दो ही चीजों का है। पहले तो आप इन सीटू टिश्यू को फिक्स नहीं करते हो, you fix it, you do a frozen section, that is you remove the tumor and then send it for pathology. And secondly, you don't remove the entire tumor and look at the margins. You debulk the tumor and then send specifically the margins separately. You don't need to send the entire tumor. आप पूरा tumor send करोगे तो you simply wasting time, because you are not interested in the tumor का size कितना है, depth कितना है, वो you are mainly interested in preserving the margins. ये एक गाइडलाइन इम्पोर्टेंट है, 2012 या 15 में आया था आई थिंक, अप्रोप्रिएट यूज क्राइटेरिया, AUC क्राइटेरिया were developed by this international world mohs micrographic surgery consortium 2012 या 15 में. So it is particularly suitable for areas in the H area, that is the central face, eyelids, periauricular, पूरा face area, anogenital region, hands, feet, ankles, nail and nipple areola. तो ये areas पे जहाँ पे थोड़ा सा ये कॉस्मेसिस और हाई रिस्क एरियाज है वहाँ पे सूटेबल है. नंबर 2, हाई रिस्क पेशेंट के अंदर सूटेबल है मोस सर्जरी. मतलब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पेशेंट को जेनेटिक सिंड्रोम है which makes the patient prone to these repeated attacks of BCC SCC. तो वहाँ पे उसको बार बार एक्सीजन लग सकता है. पेशेंट की स्किन प्रायर रेडिएटेड है जहाँ पे आपको ऑलरेडी हीलिंग का प्रॉब्लम होने वाला है. यू नीड टू सेव एज मच स्किन एज पॉसिबल एंड रिमूव जस्ट द ट्यूमर, एंड द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ हाई रिस्क ट्यूमर्स. So you have location criteria, you have patient criteria, you have tumor criteria जहाँ पे ट्यूमर का टाइप अग्रेसिव है, पेरिन्यूरल इन्वॉल्वमेंट है, आपने जब बायोप्सी लिया पंच बायोप्सी, जो आपने पंच बायोप्सी के अंदर भी डेप्थ तो लिया है तो उसके अंदर PNI पॉजिटिव आया है, या फिर SCC का अग्रेसिव, मतलब वही अग्रेसिव फीचर है BCC में या SCC दोनों का बेसिकली अग्रेसिव फीचर आता है. ठीक है. सो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. इक्विपमेंट के अंदर कुछ नहीं चाहिए आपको, सिंपल सेटअप है ऑपरेटिंग का, और दूसरा आपको एक फ्रोजन सेक्शन वाला बंदा चाहिए. टेक्निक जो फिगर में था वही उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, वो अपने को लिखना है एग्जाम में. द ट्यूमर इज फर्स्ट आउटलाइंड, लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट किया, एनी विजिबल ट्यूमर इज देन रिमूव्ड और डीबल्क्ड. Prior to removal, the tissue is carefully oriented. Thin margin of tissue is then removed circumferentially around and deep to the debulked tumor defect. Once removed, this is often cut into halves or quadrants, then marked with colored dyes to facilitate precise mapping. Then the tissue is cut in the horizontal fashion. बोला ना, उसको ऐसे कट करना, उसको ऐसा, अगर ये टिश्यू का सेक्शन है तो उसको ऐसे कट करके मार्जिन नहीं देखने का, अपने को सर्कमफरेंशियली मार्जिन देखने का. And virtually 100% of this peripheral and deep margin can be examined on the same tissue section under the microscope. If the residual tumor is identified under the microscope, then the Mohs map is marked and the corresponding in situ tissue is precisely removed. ठीक है. Microtomes at feces tissue allowing cutting of mountain glass. ठीक है. तो मोस सर्जरी के बाद भी डिफेक्ट क्रिएट जो हुआ उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, वही जो उसके पहले अपने सोचा था. टिश्यू, इट कैन बी अ लोकल फ्लैप, इट कैन बी रीजनल फ्लैप, और इट कैन बी प्राइमरी क्लोजर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिफेक्ट. It can also be used to treat other less common tumors including DFSP, microcystic adnexal, extramammary Pagets, Merkel cell, sebaceous carcinoma, including some form of malignant melanoma, and the 5-year cure rates are good enough. Primary BCC 99%, recurrent 95%, primary SCC 92 to 99%, recurrent SCC 90%. तो most surgery का survival and disease free outcome भी good enough with white local excision comparison में है. ये अभी तक पूछा नहीं है,
ये अच्छा खासा पढ़ा दिया था डेविटा के अंदर और इसके अंदर भी, एंडरसन के अंदर भी, इसलिए मैंने पढ़ा था। बट एक बार पढ़ लेना, आई डोंट नो ये आएगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हो गया था। DFSP नक्की पूछा है, तो DFSP विल रीड। सार्कोमास के चैप्टर के अंदर उसने क्वेश्चंस में लिखा था, बट इट्स गिवन हियर। सो रेयर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, aggressive local and low metastatic potential, we know that, just like BCC 0.1% का सॉरी ये तो इंसिडेंस है, मेटास्टेटिक पोटेंशियल कम है। it's a rare tumor, approximately 1% of all sarcomas and 0.1 of all malignancies. 90% are low grade and remainder are intermediate or high grade. Most commonly affects patient in their 30s, equal men to women ratio. Important ये है, more than 90% have a translocation, chromosome 17 and 22. उसमें फ्यूजन की चीज का होता है, एक होता है कोलेजन टाइप 1 अल्फा जीन एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा जीन. So what happens is the growth of DFSP is a result of the deregulation of the PDGF beta chain expression and therefore activation of the receptor protein kinase. PDGF का receptor protein kinase activate होता है. What are the clinical and pathological features? Classically it is a solitary lesion, pinkish, asymptomatic, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं है, pinkish और violish, solitary raised lesion, occasionally mistaken for a scar or a keloid. Remember, keloids can also arise without any previous history of trauma. So just like that, these can also be mistaken for scars as well as keloid. It may be difficult to differentiate a dermatofibroma or a keloid. ठीक है, most commonly keloid की जैसे ही है, trunk पे arise होता है, less frequently on other parts. Bednar tumor is a rare form of pigmented form of DFSP. Histologically DFSP डर्मिस से arise होता है. डीप इन्वेजन, डर्मिस के नीचे क्या आता है, सबक्यू आता है, तो डीप इन्वेजन इनटू सबक्यू इज कॉमन. सबक्यू के नीचे क्या आएगा, मसल एंड फेसिया आएगा, वहां पर भी BCC की तरह वो इन्वेड कर सकता है. इरेगुलर प्रोजेक्शंस लाइक अ हाई ग्रेड BCC आर कॉमन and may account for the high incidence of local recurrence after excision. In fact, ये सब याद रखने को सिर्फ ये पिक्चर देखोगे ना तो भी मालूम चलेगा. Pink to tan multilobed plaque, many years on the abdomen with minimal epidermal change. Look at this. The tumor extended to the umbilicus, visible as tan discoloration and subtle induration, and penetrated deeply to the fascia of the rectus abdominis. ये I don't know, मुझे तो याद नहीं रहा. But basically what they have said is we need to make a distinction also between the deep penetrating dermatofibroma, which is a benign condition that involves the subcutis, from DFSP, which is a low grade sarcoma. So deep penetrating dermatofibroma is a benign condition and dermatofibrosarcoma protuberans is a low grade sarcoma, locally invasive condition. इन दोनों को डिफरेंशिएट करना अगर हो तो IHC लगता है. याद रहे तो कर देना, आई डोंट थिंक मुझे याद रहेगा, तो IHC लगता है, दैट्स इट. इन what about staging and prognosis? They are staged as the soft tissue sarcomas. Apart from that, there are lots of similarities in general between BCC and DFSP. Prone to local recurrence, no universal accepted staging system. AJCC groups DFSP with other soft tissue sarcomas. So all localized DFSPs are classified as stage 1. Number 1. Number 2, aggressive fibrosarcomatous variant of DFSP may present with higher grade histologic features, classified as stage 2 or stage 3 depending on size of the primary tumor. Stage 4 is metastatic, very rare, but there exists an entity called stage 4. So we have stage 1, which is for most DFSPs. For fibrosarcomatous variants, we may have stage 2 or stage 3 depending on the size, and stage 4 is very rare. The average time for recurrence is usually within the first 3 years. DFSP of the head and neck is staged separately from the trunk. Why? Because DFSP of the head and neck has been reported to have a higher local
recurrence rate than DFSP in other locations. For lymph node mets, again, like BCC itself, approximately 1% of cases, and distant mets, if they are at all present, they are going to be most commonly to the lung in approximately 4% of the DFSP cases. So DFSP is technically present less than 1% of all malignancies. उसमें भी only 4% have metastasis. उसमें भी most common is lung. So what is the first line treatment? Again, it is like BCC. It is a wide local excision or mohs micrographic surgery. Minimal margin of at least 3 centimeter. You remember this by remembering this picture. Okay, you cannot excise just a 5, 6, 7, 8, 9 millimeter margin. You have to have a proper big margin. Okay. The likelihood of local recurrence is directly proportional to the adequacy of surgical margin. ये 3 centimeter कहाँ से आया? Wider excision margins of more than 2.5 centimeters have been reported to reduce the recurrence rate to 10%. Alternative treatments क्या है? Radiation, chemotherapy. Radiation selectively में selective cases में देखते हैं जहाँ पे surgical resection possible नहीं है या it would result in a major cosmetic deficit. Chemotherapy क्या देंगे? PDGF receptor inhibitor, which is imatinib, has been used with clinical success in advanced diseases. बाकी तो ये चैप्टर ही है, बीच बीच में टाइम मिले तो पढ़ना, पर ये